صاحب, صوبیدار محمد اسماعیل خان صاحب, جناب رائے محمود عزیز خان صاحب, سردار یوسف خان صاحب, صوبیدار شاہزمان خان صاحب, صدیق انقلابی خان صاحب, حاجی اکول حسین صاحب, اور جتنے ہمارے مذمت کار ستار حبیب صاحب ایڈوکیٹ, اور جتنے لوگ اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کے سامنے بات کرتے تھے, وہ آج ہم میں نہیں, اللہ ان کی قبر کو کروڑوں رحمت سے نوازے. ٹھیک, جو بات آپ سے کرنی ہے, بل آ گئے, کئی ساتھی گئے, انہوں نے بل لیے, وہ بچہ کڑیے کھل ہوئے تو سے نہیں گل بانے والا کڑیے کھل. یہ ساتھی بل لے آئے, یہ گئے کہیں ایس ٹی او کے ساتھ بات کرنے, تو آگے وہ صاحب نہیں تھے, انہوں نے کہا بھائی بل ہمیں دے دو, انہوں نے چپ کر کے بل دے دیے. اس کی کیا وجہ تھی؟ بل وجہ دینے کی یہ تھی کہ ان کو پتا ہے کہ ہم گاؤں میں جائیں گے تو لوگ ترپڑوں سے ہمارا استقبال کریں گے. اب یہ خون جاگ گئی ہے. ایک ٹائم تھا ہم بلاتے تھے, نعرے مارتے تھے, تو ادھر سے جاتے تھے, پیچھے سے لوگ آنے سے جی یہ دیر یہ دیا ہے, یہ ایجنٹ دے, آخر راہ نے ایجنٹ دے, ان میں لگنا تو سارے راہ نے ایجنٹ دے. اپنے حقوق کی بات کرو گے تو مختلف طریقوں سے آپ کو بدنام کیا جائے گا. کل مجھے ایک پوچھتا ہے, گاؤں ہوتا تھا, ایک گاؤں کو کوئی جانتا تھا بھائی, والی بال کا پلیئر تھا, کوئی جانتا تھا نا. گاؤں کی عمر ہے 90 سال. مجھے فون کر کے پوچھتا ہے قاری نصیر, میں جی ہے تسے لبریشن فرنٹ چھوڑی میں ہے کیوں ہے تھے کوئی بندے بونے بڑی داڑیاں والے ایتھے تک نہیں تو سمجھی ہو رہا کون دے ہو نیا سمجھے. ایجنسی نے لوگ داڑیاں رکھی دا آئے نے دا اے پگڑیاں بدے, تو سوچنے ہم جائے دے حالانکہ وہ ایجنسی گسائی نہیں دینی کہ انہیں گمراہ کرو. اس کا کیا ہوا نے کہ قاری نصیر راہ نا ایجنٹ سا, تو اس کی توبہ کری جا رہا ہونا کہ میں ہننا سکھا لبریشن فرنٹ ہی رہنا, لبریشن فرنٹ چھوڑی رہا ہے. اس طرح کے پروپیگنڈے بھی آپ سے کیے جائیں گے, اور اس طرح بھی ہوگا, سن لیں میری بات, اس طرح بھی ہوگا کہ ایسا بھی ہو جائے جس طرح یہ راولہ کوٹ میں مسجد میں بندہ مارا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی مر گیا؟ یہ اس خطے کو پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ یہ لوگ خوشحال کیوں ہیں, یہ باوقار کیوں ہیں, باعزت کیوں ہیں, اور اتفاق اور اتحاد اور پیار اور محبت سے کیوں رہتے ہیں. کئی دفعہ آ کر پوچھتے ہیں کہ جی تسے نو کاروبار کیا تھا, تسے نہیں عمر کتنی دی, میں کو کہیں پوچھا عمر کتنی دی, میں کچھ دوے کو پوچھا وہ یہ عمرہ نے بارے کے پوچھنے, انہیں آئے جی انہیں نوٹ کیتا نا کہ جڑے جڑے مذمت کار دی جو کتنا عرصہ ہو رہے لے کتنے عرصے ہی مل رہے. میں سوچا کوئی شادی کرانے لگے, وہ پوچھنے مرسی کا دوں. دوستو خدا را زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ 4 دن کا کھیل ہے. جہاں اسٹیج پہ ہزاروں لوگ تقریریں کیا کرتے تھے آج قبروں کو چلے گئے. ہر آدمی اپنے اندر جرت, بہادری, اتحاد, اتفاق, محبت, پیار, کردار, اور ہر آدمی اپنے اندر ایک کمانڈر والی صلاحیت پیدا کرو. کھانا پینا بالکل مجمع میں دیکھنا یہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا دن. کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, یہ خنزیر بھی کرتا ہے. کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, اگر انسانیت ہے تو پھر ہم سے خنزیر بہتر ہے. کھانا پینا, بچے پیدا کرنا انسانیت نہیں, انسانوں کے حقوق کی بات کرنا انسانیت ہے. ظلم کے خلاف ڈٹ جانا یہ انسانیت ہے. اور جب تم پر مشکل ٹائم آئے تو اس پر صبر کرو, اور جب دیکھو کہ جان جاتی ہے جان دے دو, مگر اپنے مشن سے پیچھے بولتے ہی نہیں ہو یار. جواب دو, خدا رہا مجھے جواب دو, اپنے مشن سے پیچھے. ہمارے بزرگ پیچھے تھے, ہمارے جن کو ہم مانتے ہیں کالی کملی والے کے فالوور ہو, کلمہ نبی کا پڑھتے ہو, کلمہ صدیق کا پڑھتے ہو, کلمہ عمر کا پڑھتے ہو, اور ہمارا رول جو ہے وہ غیروں جیسا. اس لیے میرے بھائیوں, اس دن رات کو اس پریس ہاؤس میں بیٹھ کر رات 11 بجے ڈی ایس پی صاحب کی موجودگی میں, ایس ڈی ایم صاحب کی موجودگی میں, تحصیلدار صاحب کی موجودگی میں, ہم کو 20 آدمی تھے. رات 11 بجے جا رہے بٹاڑا سے بشیر بھائی بلائے, میں تھا اس میں,
और इन्होंने हमें मिन्नत की कि हमारे बिल वापस दे दो। हमने कहा ये लो अपने बिल, चूंकि तुम राह फरार करना चाहते हो, तुम लोगों को ये कहोगे ऊपर जाके कि हमसे बिल छीने गए। मैंने कहा ये ले जाओ। इन्होंने ले जाकर बिजली वालों के हवाले किए, वहां इनकी फोटीजी हुई, वहां रसीद बनी, फिर रसीद इन्होंने दे करके इतने बंडल हमने ले लिए। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर दोहरा म्यार अपनाया और जनाब हमारे साथियों पर FIR की। ये FIR आज नहीं हुई, वो याद है आपको जब मैंने थाने में 13 घंटे तकरीर की थी हवालात से, वो भी FIR थी। क्यों थी? वो बगावत का पर्चा आपको याद नहीं है? वो ISI जब उठा के मुझे ले गई थी, मैंने क्या किया था? यही किया था कि उस वक्त भाई शबीर नहीं थे, ये छोटे थे, उस वक्त मास्टर दिलशाद साहब थे, उस वक्त दाऊद साहब थे, उस वक्त जनाब मनशा साहब थे, उस वक्त जनाब हमारे बड़े यशवीर इनकलाबी साहब, हम इनके साथ चलते, इनसे हमने सीखा। तो मेरे भाई उन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा भाई ये नहीं दबता, अब दूसरा भाई आ गया। मेरे भाइयों, हमें कोई इलेक्शन लड़ने की, कोई दूसरी तीसरी बड़ी गाड़ी पे बैठने की शौक नहीं, हमें गरीब के साथ रेहड़ी पर बैठकर उससे प्यार करने की बात है। हम इसको खुशी समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने रिकॉर्ड देखना है, आओ, जो कोई नाबीना गुजर रहा हो शहर से, जो कोई परदेसी बेसहारा गुजर रहा हो, उससे पूछ लेना कि उसके साथ हम क्या करते हैं। ये अल्लाह को पता है और हमें पता है। ये हमारा इस बात का हमारा अल्लाह गवाह है। बात जो आपसे कहनी है, जिस बात पे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह त्राड़खल का नौजवान, त्राड़खल की तमाम सियासी मजहबी जमातों के नौजवान, तमाम अंजमन ताजरान, तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन, वो चाहे कैरी डब्बा हो या चाहे ट्रक वाला हो, हम सारे और तमाम नेशनलिस्ट, जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल पार्टी, जितने वर्कर हैं गरीब, जो जिस जमात से अपने हुकूक के लिए सब एक मुट्ठी बन चुके हैं, इस बात पर हमें खुशी है। क्यों भाई? क्यों भाई? आपने देखा ना, आपने देखा आपके तमाम लीडरों ने आकर जो तकरीरें की, वो क्यों की पता है? वो आपकी वजह से। जब उनको पता चला कि ये तो सारे इत्तेफाक और इताअत के साथ निकल गए, तो मेरे भाइयों, ये जो एसटीएम है, ये इसके लिए भाई ने कहा कि कूंडा संगल। मेरे भाइयों, जब कुत्ता चल रहा हो, ये अच्छा कह रहा ना कुत्ता था, उसकी क्या करनी है, जितना ही प्यारा है गोली, आज इसकी गोली नहीं मार रहे, इसकी मैं समझना इसके संगले चा बनी ना, तो उन्हें बड़े बोला कि यो तुसन ऐसा डब्बू दा कि यो किसा कम्मे ना इसकी नहीं रखा। वो जड़ा डब्बू राती बेची तो सड़क ने माइदा करी तो बिल ही नहीं गा, तो वो डब्बू मुड़ी फोन करना STO की खोन दिया, एमें बुढ़ी पे मार दी। तो मैं सर गड्डी नहीं है डिलीवरी केस से सर, जो रात डिलीवरी केस हल कर रहा लोगों ने। मैं आख्या डब्बू बाहर निकल, वादा करके कल तू त्राड़खल कम करना, 8 बजे का वादा करा, ऐसा सारे गवा दे है जी वादा। तो मैं कल STO नहीं गड्डी इत्थे होनी चाहिए, कल DC इत्थे होना चाहिए, XC होना खुली कचहरी। ये बजाय खुली कचहरी लाने ने कुनी पूछा वो पर्चा क्यों लाए है जी, मैं संगला दस ने, वो संगला नहीं हाले तू की मर्ची कूंडे बड़ा बड़ा की दस दो, इसकी पता नहीं, इसकी पता नहीं कि इतने मुंह भी काले कीते गए, मुच्छा भी मुनिया गई, प्रमटे भी मुन्नेंगे। इस वास्ते मैं तुझसे को गल पाना है कि आपने ये जितने ऊपर है, जितने ये सारे एक हैं, सारे मिले हुए, चाहे कोई DC है, कोई SP है, कोई एक्सियन है, कोई STO है, कोई MS है, जो भी बड़ा है वो आपका कातिल है। और आपने मजम्मत करनी है इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार और मोहब्बत और जुर्रत के साथ, फिर जाके आपके हुकूक आपकी दहलीज पर मिलेंगे। करोगे? करोगे? अगर आपको कहीं लॉन्ग मार्च करनी पड़े अपने हुकूक के लिए तो करोगे? हाथ खड़ा करके करोगे? अगर जेल में जाना पड़े तो ऊंची आवाज से, अगर कहीं हथकड़ी पहननी पड़े तो, अगर कहीं सूली चलना पड़े तो, अगर कहीं धरना देना पड़े तो, फिर आखिरी बात सुन लो मेरी, बस ये समझो
जिस वक्त कोई आवाज आए, जिस तरह आप आज आपने किया ना, बस अपना हर काम छोड़ के फर्ज समझ के अपनी तहरीक के लिए निकल जाओ। चूंकि ये लंबा टाइम है, लंबी बात है, ये चूंकि रुकने वाली बात नहीं है। चूंकि इन जालिमों से हमारी टक्कर है, जब तक जुल्म खत्म नहीं होता, जबर खत्म नहीं होता, ये स्याह रात खत्म नहीं होती, सवेरा नहीं आता, गरीब को उसके हुकूक नहीं मिलते, उस वक्त हमारी तहरीक जारी रहेगी। जो बात है आखिरी इस हवाले से जो आप खड़े, आपकी सादत से आपसे पूछता हूं, कल शाम में 8 बजे तक, कल इतवार है, 8 बजे तक आपकी विसादत से हाथ खड़ा करके इनको टाइम देते हैं कि ये FIR खत्म करके, ठीक, और हमारे मामलात सारे हल करके माफी मांगे और अपने अपने रवैये दुरुस्त रखें। अगर ये कल 8 बजे रात तक ये मामलात हल नहीं करते तो हम आपको किसी जरिए से बताएंगे, अनाउंसमेंट करनी हुई या सोशल मीडिया के जरिए से हुआ, या इसको 4 बजे तक रख लेते हैं, कल 4 बजे तक रख ले, क्योंकि सारे लोग 4 बजे तक रख लेते, 4 बजे तक इनको टाइम देते, नहीं तो परसों सुबह से मुकम्मल पहिया जाम, मुकम्मल पहिया जाम, उसके बाद शटल डाउन, मुकम्मल शटर डाउन करते हो, मुकम्मल शटर डाउन करो, जो नहीं करता है अभी मुकर जाए। अच्छा सुनो, अगर उसके लिए हमें इनके दफ्तरों में ताले लगाने पड़े तो वो भी वो, चूंकि उस हिसाब से हम फिर आगे करेंगे, चूंकि शायद रजिस्ट्रेशन को भी लगाने पड़े, महकमा बरकियात को भी लगाने पड़े, और SDM साहब को तो हम यहाँ से कहें, अभी कहते हैं कि ये मजमा कहता है कि संडा SDM हमें है, SDM साहब आप है, अलविदा SDM साहब आप है, अलविदा SDM है, ऐसा SDM हमें कोई रिश्वतखोर अफसर अगर यहाँ हमें मिला तो हम उसको नंगा करके भेजेंगे, नंगा करके। जो अफसर आवाम का काम करेगा, जो अफसर लोगों की फलाह के लिए काम करेगा, मरकज के लिए काम करेगा, वो हमारे सर का ताज है, और जो पैसे लेता है, करप्ट है, रिश्वतखोर है, वो इस मरकज का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। मैंने SDM साहब से पूछा, मैंने कहा, बात आ गई बीच में, मैंने कहा हेडमास्टर साहब का कितना वो है उसका स्केल, कहने लगे जी 22वां स्केल है। मैं आखा जी हेडमास्टर बेचारा त्राड़ खाली सीना पूंजना जंडा लिया पहुंचना तो साहब तुसनो का स्केल दा है माड़ा 17वां, तो मैं कहा जनाब तुसे को नहीं कहा शायद लगाना, तुसे को 1.5 करोड़ नहीं गड्डी है, हमारी तनख्वाह थोड़ी है। तो मैं कहा तुझो छिल्लियां लोकेगी, आवाम का माल खाने से, गरीब का माल खाने से, आवाम से रिश्वत लेने से बेहतर है तुम टट्टी खाओ, खंजीर का गोश्त खाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर। और तुम्हारी नस्लें सुन रही होंगी, ये फेसबुक पूरी दुनिया देख रही है, SP, DC, तहसीलदार, थानेदार, SDM, तमाम बड़े अफसरों के बच्चों सुनो, ये तुम्हें जहन्नुम में ले जाना चाहते हैं। रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत खाने वाला, उसके बच्चे, उसके बच्चियां जो जुल्म और ज्यादती पे पड़ रहे हैं सारे बोलो भाई। तो फिर इनके बच्चों को भी चाहिए कि अब्बा जी आज भुखे रहिए ने जो खंजीर अंदर है, तो जदू बच्चे आखले पापा अस पैदल टुरने, पापा अस गड्डी नहीं लौटनी, पापा से नीलिया पटिया वाली गड्डी नहीं लौटनी, तो फिर पापा भी रिश्वत है। तो ये हमसे टैक्स लेके, पैसे लेके, हमारे बालवर से, हमारे बूट मेकर से, हमारे दुकानदार से, हमारे गरीब रेहड़ी वाले से टैक्स लेकर ये अपने बच्चे पालते हैं। इनके बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटियों में, इनके बच्चे बड़ी गाड़ियों में, और इनके खिलाफ ये हैं कितने भाई, ये हैं कितने 3%, कितने 3%। आप कितने हो 97%। ये आप 97% हो, 97% वालों, हलाली बेटो, गयूरो, आपसे बात कर रहा हूँ, बताओ इनको आइंदा टैक्स दोगे? जो देगा हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। आखिरी जो बात करनी है, ये चौक जब छुट्टी होती है जाम हो जाता है, सुनो, ये चौक जाम हो जाता है,
वो पार वाला चौक भी जाम हो जाता है, नीचे वाला चौक भी जाम हो जाता है। हमारी एसपी से मुतालबा है कि जिस वक्त छुट्टी का टाइम हो, ये जितने थाने में सिपाही हैं, ये दिन को क्या करते रहते हैं भाई? बिजली चारने, अंटे छोड़ने, बच्चे तारने, क्या करने उन्हें? कोई चेकिंग नहीं बजा रही, कोई गड्डी चुरनी बजा रही, कोई राती चेक पोस्ट ऊपर कोई खताना शनाख्ती कार्ड चेक करना, कौन आया कौन गया, ये सिर्फ हमें मारने के लिए, ये गरीब की हक की बात करने वालों को, ये गरीबों को दबाने के लिए तुमने अपना अड्डा लगाया हुआ है। अगर हक सच की बात करो तो मैं समझता हूँ ये थाना इधर होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये जब यही जुल्म करते, यही ज्यादती करते, ये शहर के अंदर ट्रैफिक का हजूम हो, छुट्टी के टाइम 2 सिपाही इधर हूँ, 2 उधर, ये 10 लोग बाहर निकल जाएं तो हमारे शहर की बच्चियां बच्चे बाइज्जत बावकार घरों को पहुंच सकते हैं कि नहीं? तो ये रश कौन डालता है? ये किसका काम है? एसडीएम का, इंतजामिया का, एसपी का, डीसी का? कभी डीसी ने यहाँ खुली की जारी लगानी चाहिए कि नहीं? जी, वोट किसको दिए थे? एमएलए कौन है? क्योंकि आसिक ने नाराजगी ये दी कि तू सासे की वोट नहीं देने, तेरी वोट नहीं, तू सासे की करने, तू दसा मां असली दुश्मनी थी जी। वोट क्यों दीते से के अंदर लेटी गए? बोलो नहीं भाई, दरियल नाम मैं की किया नहीं आने वोट क्यों दीते से के अंदर लेटी गए? एसपी की कौन समझाए, डीसी की कौन समझाए, एक्सीएन की कौन समझाए, एसडीएम की कौन समझाए? समझाने नहीं, बोलो समझाने, समझाना चाहिए ना? नहीं कि नहीं? तो प्यार करने गल्ला करने के रिश्ता नाता दा प्यार मोहब्बती सच आपस ही एक दो। इसका लादा न से वोट तुझे दीते, इसका लादा न से दीते के अंदर लेटी गला हाथ रोडे खाली गला तू पसंद वो तो तू सुपरा खून गला बच्चे ला रहे बात जरा गरीबे नहीं गल बनो वे जी। तो आखिरी जुल्म के खिलाफ एक अगर नमाज के बाद अलामती हम यहाँ धरना दें, सबको नहीं कहते, जो लोग वॉलंटियर होकर डरने में आके बैठे घंटा वो कौन लोग हैं आजकल? आप खड़ा करें, ठीक है? अभी धरना लगेगा इधर जब तक ये तहरीक खत्म नहीं होती, और ये शायद ये धरना लंबा अर्सा तक लगेगा इधर ही। आप लोग हमारे साथ हैं, अपने आप के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ है, अपने अबू के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, आपकी नस्लों को सुरखरू करे, और आप सारे मजम्मतकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासर है। इस मजमे की विसादत से हाथ उठाकर जो रावला कोर्ट में भरना होगा, मरना होगा। सुनो मेरी बात, जो रावला कोर्ट में धरना है उसकी भी मुकम्मल है हमायत करते, जो अजीरा में धरना है हमायत करते, जो जफराबाद में धरना है हम उसकी ताईद और हमायत करते हैं। किलो में जो धरना है, पूरे आजाद कश्मीर में जो धरना है, हम उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। और अगर हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो जो एक्शन कमेटी फैसला करेगी, पूरी त्राड़खल की आवाम उनके साथ खड़ी रहेगी। ये उनको बताओ भाई, ये देखो ये पूरी आवाम ऊंचा ये पूरी आवाम अपने हक की खातिर अपनी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। आवाज दो हमें एक है, ऐसे नहीं, आवाज दो हमें एक है, नहीं इस तरह नहीं, आवाज दो हमें एक है, जुल्म के खिलाफ एक है, जबर के खिलाफ एक है, कश्मीर की आजादी तक एक है, जुल्म की स्याह रात मिटने तक एक है। एक्शन कमेटी के फैसले के साथ हमें एक है, हमें एक है। जफराबाद में भी एक है, मीरपुर में भी बोलो एक है, जफराबाद में भी एक है, मीरपुर में भी एक है, कोहटा में भी एक है, जीरा में भी एक है, जिला में भी एक है, छक में भी एक है, पंजोसा में भी एक है, हुसैन कोट में भी एक है, में एक है। अपने हकूक के लिए हमें एक है। ये हमारे चूंकि FIR इन पे हुई है, ये 1 मिनट बात करते, उसके बाद आपको छुट्टी है, उसके बाद हम धरना देते, वापस नमाज पढ़ के सब इधर ही आना है। जिस चीज जो फारूक है, जो काम वाले वो काम करें, और अपनी आंखों के सामने देखते रहना।